சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும், குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார். परमेश्वर के पवित्र आत्मा मुझ पर है, गरीबों को सुसमाचार बांटने के लिए और बंधन में जो लोग रहते हैं उनको आजाद करने के लिए, जो बंदीगृह में रहते हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। இந்த வார்த்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து इस அவர் वचन ஜெப को प्रभु ஆலய यीशु मसीह ஜெப ஆலயத்துல பிரவேசிச்ச உடனே அவருடைய கையில இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தை கொடுக்கறாங்க. அவர் அந்த புஸ்தகத்தை பிரிச்ச உடனே இந்த வசனத்தை பாக்குறாரு. அத படிச்ச உடனே அவர் சொல்றாரு, இன்றைக்கு இந்த வாக்கியம் என் மூலமா இன்றைய தினம் நிறைவேறிற்று அப்படின்னு சொல்றாரு. यीशु मसीह इस घटना को अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 4 में, यीशु मसीह मंदिर पे गया, वहां पे यीशु मसीह के हाथ में पवित्र शास्त्र दिया गया था। पवित्र शास्त्र को जब यीशु ने खोला, वहां पे ये वचन यीशु के सामने दिखाई दिया, जो वचन हमने पढ़ा था लूका सुसमाचार अध्याय 4 का 18 और 19 में। उसको पढ़ते ही यीशु मसीह ने कहा, ये वचन आज पूरा हो गया। பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக ஏசாயா சொன்ன தீர்க்கதரிசன வசனம் இன்றைக்கு நிறைவேறிற்று என்று சொன்னார். वो बहुत साल, हजारों साल पहले यशाया भविष्य वक्ता ने जो भविष्यवाणी के रूप में वचन बोला गया है, वहां पे उस वचन को लेके यीशु मसीह ने कहा, आज पूरा हो चुका ये वचन। அன்றைக்கு அவர் என் மூலம் இன்றைக்கு நிறைவேறிற்றுன்னு அவரு சொன்னார்னா, இன்னைக்கு இந்த வசனத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லணும், ஏன் மூலமா இது நிறைவேறிற்று அப்படின்னு சொல்லணும். उस दिन यीशु मसीह ने जब उस वचन को देखकर कहा, ये वचन आज पूरा हो गया करके यीशु ने कहा है, तो जो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, उस अभिषिक्त प्रभु के अभिषिक्त दास को जो लोग विश्वास करते हैं, हम भी आज ये बोलना चाहिए, आज मेरे द्वारा भी ये वचन पूरा हो गया। இன்னைக்கு நான் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இத்தனை வாக்கு தத்துவங்கள், இந்த வாக்கு தத்துவம் ஏன் மூலமா நான் இருக்கிற இடத்துல நிறைவேறுதுன்னு அர்த்தம். ये जो वचन आपके द्वारा आप जहां रहते हैं वहां पे ये वचन पूरा होगा आपके द्वारा। ஒருவேளை நீங்க சரியா வேதாகமத்தை படிச்சவங்களா இருக்கலாம், படிக்காதவங்களா இருக்கலாம், ஒருவேளை படிச்சிருக்கலாம், ஒருவேளை நீங்க ஊழியம் செய்யறவங்களா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஊழியம் செய்யாதவங்களா இருக்கலாம், நீங்க போதகரா இருக்கலாம், நீங்க போதகரா இல்லாம இருக்கலாம். நீங்க தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை நீங்க விசுவாசிச்சா போதும், இந்த வார்த்தை உங்கள் மூலமாக நிறைவேறிற்று. चाहे आप बाइबल पढ़े या ना पढ़े होंगे, चाहे आप शायद पास्टर हो सकते हैं या विश्वासी हो सकते हैं, चाहे आप यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानते या कम जानते हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करने से काफी है। आपके द्वारा परमेश्वर इस वचन को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। ஆதியாகமம் அந்த 1ஆம் அதிகாரத்துல ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்த பூமியின் மேல ஆவியானவர் அசைவாடினார். हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 में हम देखते हैं वहां पे ये पृथ्वी सुनसान और बेडोल थी और पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छा गया था। उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडल आया और उस सुनसान और बेडोल को ठीक किया हुआ वो परमेश्वर அந்த ஒழுங்கின்மையுமா இருந்த அந்த வெறுமையா ஒண்ணுமே இல்ல, அத ரொம்ப அழகான அலங்காரமான உலகமாக மாற்றினார். उस सुनसान और बेडोल को आप आज देखने जैसा इतने बड़े अच्छे सुंदर जगह बनाया उस परमेश्वर ने। அழகான குடும்பத்தை உண்டாக்கினார். एक बहुत सुंदर परिवार को वाटिका में बनाया।
அழகான குடும்பம். ஆண்டவருடைய முதல் தரிசனமே குடும்பம் தான். परमेश्वर का सबसे पहला दर्शन जो है वो परिवार है। ஆதாம சின்ன குழந்தையில இருந்து ஆண்டவர் குழந்தையா படைச்சிருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் கணவன் மனைவியா 2 பேர உண்டாக்குனாரு. हम देखते हैं वहां पे परमेश्वर सोचने से आदम को एक छोटे बच्चे के रूप में बना सकता था, मगर वैसे नहीं। அவ் परमेश्वर ने आदम को एक जवान बनाया, हव्वा को एक जवान बनाया, और दोनों को शादी से ही, विथ मैरिज गॉड स्टार्टेड हिज प्लान। ओ शादी से ही परमेश्वर ने इस पृथ्वी की आरंभ किया है। இந்த ஆண்டவராகிய பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியாகிய திருத்துவ தேவன் எப்படி தங்களுக்குள்ளே ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தார்களோ, தங்களுக்குள்ளே ஒருவரை ஒருவர் அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஒருத்தரை விட்டே கொடுக்கல. அப்படி ஒரு அன்பு இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வைத்து இந்த குடும்பத்தை அவர் உண்டாக்கினார். और परमेश्वर ने परिवार को इस दर्शन के साथ बनाया इस दुनिया में, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो एक दूसरे को जैसे एक जैसा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे को इतनी गहराई में समझकर चलते हैं, वैसा ही हम भी रहने के लिए परमेश्वर ने परिवार को इस दुनिया में सृष्टि किया है। இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறதான ஈகோ, இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற பொறாமை, இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற ஜட்ஜிங் ஸ்பிரிட், ஒருத்தர குறை சொல்றது, அதெல்லாம் திருத்துவ குடும்பத்துக்குள்ள கிடையாது. अभी आज हमारे परिवार ऐसे चल रहा है, हमारे घरों में एक दूसरे पति पत्नी के बीच में इतनी ईगो चल रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को हम छोड़ के नहीं दे पा रहे, छोटी छोटी बातों को भी हम वो ग्रहण नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे एक जिंदगी हम जी रहे हैं, मगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर ऐसे कोई भी बात नहीं है। वो एक दूसरे को ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे समझ के बैठे हैं। பிதா பாத்தீங்கன்னா, அப்ப திருத்துவ குடும்பத்துல பிதாவை பார்த்தா அவர் குமாரனை அப்படி ஒரு நேசம். குமாரன் பாத்தீங்கன்னா பிதாவை அப்படி ஒரு நேசிக்கிறாரு. பிதா சொல்றதான் நான் செய்வேன்னு சொல்றாரு. பிதா சொல்றாரு குமாரன் கையில நான் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டேன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் சொல்றாங்க பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்த கூடாதுன்னு. எப்படி ஒருத்தரை விட்டு கொடுக்காம ஒருத்தரை நேசிக்கிறாங்கல்ல, அந்த நேசத்தை தான் ஆண்டவர் குடும்பத்துக்குள்ள வச்சு படைச்சாரு. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में वो जो ट्रिनिटी फैमिली, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में आप देखो, जब पुत्र इस दुनिया में आया, पुत्र हमेशा यही बोलता है, मेरा पिता जो बातें बोलता वही मैं करूंगा, मेरा पिता की इच्छा ही मैं पूरा करूंगा, मैं खुद से कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसे हमेशा पिता को ही महिमा करते रहता है, पिता की इच्छा पे चलने में चलता है। जब पिता और पुत्र दोनों मिलके ये कह रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को दुखी शोकित मत करना। ये देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कैसे एक डीप, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग और किस प्रकार की प्यार उनके बीच में बह रहा है, ये बात आप देखना बहुत जरूरी है। அவங்க ஒருத்தரை அன்போட பார்த்தாங்க. वो एक दूसरे को प्यार से ही देखते हैं। குறையே இல்லவே இல்ல. जहां प्यार है वहां कभी कमी नहीं दिखता है। ஒருத்தரை அவங்க தாழ்மையா நினைக்க கூட மாட்டாங்க. அது கிடையவே கிடையாது அவங்கள்ட்ட. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में ये भी नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पिता बड़ा है पुत्र छोटा है, ऐसा कभी उनके बीच में भेदभाव है ही नहीं है। उनके बीच में कौन बड़ा छोटा ऐसे कोई बात है ही नहीं है उनके बीच में। அந்த அப்படி இருக்கிற குடும்பம் தான் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்த அந்த குடும்பம் தான் மனுஷனுடைய அவன் சூஸ் பண்ணதுனால, அவன் ஆண்டவர் சொன்னாரு ஜீவ விருட்சத்தை சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொன்னாருன்னா, அவன் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை அவன் அதை சூஸ் பண்ணதுனாலதான் இந்த அலங்கோலமா மாறிடுச்சு நம்ம குடும்பம்.
एक्चुअली परमेश्वर ने उसी डिजाइन में, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में जो रिश्ता की गहराई है, उस रिश्ता की गहराई में ही इंसान भी अपने परिवार में रहना है सोच के ही परमेश्वर परिवार को इस दुनिया में बनाया। इसीलिए वाटिका में परमेश्वर ने कलीसिया शुरू नहीं किया, वहां पे परमेश्वर परिवार शुरू किया। गॉड्स प्लान इज अ फैमिली। सो मगर इंसान ने क्या किया, भले बुरे का ज्ञान के फल को खाने के कारण इंसान आज इस हालात कर दिया, इस पृथ्वी को भी अपनी खुद की परिवार को भी नाश मार दिया। இன்னைக்கு அந்த டிசைனே, அந்த காட்ஸ் டிசைனே, அந்த ஃபேமிலி டிசைனையே இன்னைக்கு பிசாசுன்னு சொல்றதோட நம்ம விட்டு கொடுத்ததுனால அது அலங்கோலமா மாறி போச்சு. आज हम ये नहीं कह सकते कि शैतान ने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसे हमारे आत्मा को हमने ऐसे समर्पण कर दिया कि भले बुरे का ज्ञान पे चलने की। इसीलिए हम सब खुद की ज्यादा प्यार करने वाले बनने के कारण आज हमारे परिवार बिगड़ रहा है। அன்னைக்கு அந்த உலகத்தை உண்டாக்குறதுக்கு எப்படி அந்த அலங்காரமான அந்த உலகத்தை உண்டாக்குறதுக்கு, மனுஷனை உண்டாக்குறதுக்காக எப்படி ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தின் அந்த உலகத்தின் மேல ஆவியானவர் அசைவாடினாரோ, இன்னைக்கு அலங்கோலமா இருக்கிற குடும்பத்துடைய நிலைமையை மாற்றத்துக்காக நமக்குள்ளே அவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். நம் மேலே அவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். அதான் இந்த லூக்கால நம்ம படிச்சோம். उस दिन जो बिगड़ा हुआ इस दुनिया को सुनसान और बेडोल हुआ उस पृथ्वी को ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था, वैसा ही आज भी पवित्र आत्मा जो परिवार, ये मेरे जो बातों को सुन रहे हैं, आपके परिवार, आप सोच सकते हैं हमारा भी रिश्ता ऐसा ही चल रहा है जी, हमारे पति पत्नी के बीच में हमारे घर की जो स्थिति है वो सुनसान और बेडोल हो चुका है। अगर आपने ऐसे स्थिति में आज हमारे वचन को सुन रहे, तो आज पवित्र आत्मा आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर, आपके ऊपर मंडला रहा है, उस सुनसान और बेडोल को सुंदर बनाने के लिए। இன்றைக்கு இந்த ஆண்டவர் உண்டாக்கின அந்த காட்ஸ் டிசைன் ஆகிய இந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. आज இந்த பிரச்சனை परमेश्वर ने कितने सुंदर डिजाइन से बनाया हुआ उस परिवार की सिस्टम के अंदर, परिवार को परमेश्वर ने बनाया, उस सिस्टम के अंदर, परिवार के अंदर इतना सारा परेशानियां चल रही है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों की, माँ बाप के बीच में, फैमिली रिलेशनशिप्स के बीच में। बिल्कुल இன்னைக்கு ஆண்டவர் உண்டாக்குன குடும்பத்துக்குள்ளார ஏகப்பட்ட வாக்குவாதங்கள். இன்னைக்கு குடும்பம்னா இன்னைக்கு தாய் தகப்பன் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய உறவுல அநேக பிரச்சனைகள் வர்றதுனால இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு குடும்பம்னாவே பிடிக்காம போயிருச்சு. ஐயய்ய, எனக்கு கல்யாணமே எனக்கு வேணாம், எனக்கு கல்யாணமே எனக்கு வேணாம், நான் தனியாவே நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நிறைய இப்படி ஒரு அலங்கோலமா வருது. இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு லெஸ்பியன், எல்ஜிபிடி அப்படிலாம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, குடும்பத்தை சரியா வாழல. ஆண்டவருடைய டிசைனை விட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம், வெளியில வந்ததுனால இன்னைக்கு விவாகரத்துக்கள், இன்னைக்கு பல காரியங்கள். ஆண் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னா பிடிக்கல, அது காட்ஸ் டிசைன். அப்படிதான் குழந்தைய பெறது, சந்ததியை பெறது, அதான் ஆண்டருடைய டிசைன். இப்ப அவனுக்கு பிடிக்கல, பெண்ணு சொல்லுது நான் இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆண் சொல்றான் நான் இன்னொரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றான். எல்லாம் அந்த ஆண்டருடைய டிசைனுக்கு முரணா இப்ப இந்த உலகத்துல வந்துட்டு இருக்குது. இப்படிப்பட்ட காரியத்தை மாற்றுறதுக்கு தான் ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருந்து நம் மூலமா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். आज पति पत्नी के बीच में, घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों में, हर बातों में वे भेदभाव, वाद विवाद चलते हुए बच्चे बचपन से देख के आ रहे हैं, माँ बाप के बीच में इतनी प्रॉब्लम है, एक घर के अंदर ऐसे माहौल को बच्चे देख रहा है, माँ बाप इतनी प्यार से बात नहीं कर रहे हैं,
एक साथ मिलके कोई भी कुछ भी काम नहीं चल रहा घर पे, घर ऐसे बिगड़ा हुआ स्थिति में बच्चे बड़े हो रहे हैं। इसी कारण से आज दुनिया में बच्चे बिगड़ना शुरू हो रहे हैं, परिवार की हालात के कारण ही आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज बच्चे बड़े होने के बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम शादी नहीं करना, शादी नहीं चाहिए हमें। क्यों ऐसे स्थिति आते हैं? क्योंकि बच्चे परिवार में देखते माँ बाप की जिंदगी देख के परेशान हो गया, बाप रे बाप परिवार नहीं चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं एलजीबीक्यूटी, आजकल लड़की लड़कियां को शादी करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप को तो देख लिया, लड़की लड़का शादी करके क्या कर दिया मेरे माँ बाप ने, हमारी जिंदगी बिगाड़ दिया, हमारी खुशी को छीन ली है, हमारी जिंदगी ही नाश मार दिए इन्होंने। ऐसे सोच के आजकल बच्चे बड़े होने के बाद लड़की लड़की से शादी करना चाहता। क्यों? कम से कम हम एक दूसरे को ऐसे तो प्यार करें भाई। ये तो परमेश्वर की इच्छा की विरोध में है। आज मेल मेल को शादी करता, एक आदमी आदमी को शादी करना शुरू कर दिया। ऐसे बच्चे की स्थिति बिगड़ने का क्या कारण है? क्या कारण है? यही है, माँ बाप प्यार को बच्चे के सामने नहीं दिखा पाए, एक दूसरे को छोड़ के नहीं दे पाए। பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றாரு, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷர்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் அப்படின்னு, புருஷர்களே அப்படின்னு சொல்றதோட அந்த முதல்ல பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுவாரு, தெய்வ பயத்தோட ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இதுல பவுல் இதுல இதுல பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து சபையை எப்படி போஷிச்சு காப்பாற்றுறதோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு புருஷனும் தன் மனைவிய போஷிச்சு காப்பாற்றணும், உயிரை விட்டு காப்பாற்றணும், அப்படிதான் புருஷர் இருக்கணும் அப்படின்னு பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றாரு. அதே மாதிரி மனைவி கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல, அந்த கீழ்ப்படுகிறது அப்படிங்கிறது அன்பு இருந்தாதான் கீழ்ப்படிய முடியும். அன்பு இல்லைன்னா அது சும்மா அது கமாண்ட், ஒரு ஒரு லா மாதிரி ஆகி போயிரும். அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் திருத்துவ தேவன் ஆரம்பத்துல உண்டாக்கி வச்சிருந்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் அப்படிதான் இருந்திருப்பாங்க. ஆனா அது இப்ப மாறிடுச்சு. இப்ப இனிமே நமக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகத்தினால கண்டிப்பா அது மறுபடியுமாக எப்படி ஆதியில இருந்த அந்த அன்புக்குள்ள குடும்பங்கள் வர முடியும். सो पौलुस क्या कहता है? पति अपने पत्नी को जैसे मसीह कलीसिया को देखभाल करता है, जैसे कलीसिया को वो पूरे अपने जान देकर बचाया और देखभाल कर रहा है, वैसा ही पति अपनी पत्नी को ऐसा ही करे, ऐसा ही देखभाल करे उनको, ये कहता है। और पत्नी के बारे में ये कहता है, तुम भी अपने पति को जैसे मसीह को हम कैसे दीन होकर आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, वैसा ही आप भी अपने पति को ऐसा ही दीन बनकर चले, ऐसा कहता है पौलुस। ऐसे ही परमेश्वर ने परिवार को बनाया, बट क्या करें, हम पाप में जाने के कारण सब कुछ बिगड़ गया। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक नया जिंदगी, एक नया जीवन प्राप्त किया। हमारे ऊपर जो अभिषेक मिला है, वो अभिषेक आपके परिवार की जिंदगी में प्रकट होगा, आपकी परिवार बदल जाएगा। இன்றைக்கு நாம் குடும்பங்களை பார்த்து நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும். தேவனுடைய ஆண்டவருடைய அந்த பழைய உறவுக்கு, அந்த ஏதேன் தோட்ட உறவுக்கு குடும்பங்கள் இன்னைக்கு திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லி பரிசுத்தாவியினால் நிரம்பி நம்ம தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கணும். குடும்பங்களுக்கு, நம்ம குடும்பத்துக்கும் உரைக்கணும், நமக்கும் உரைக்கணும். आज हम अपने परिवार के ऊपर भविष्यवाणी करना जरूरी है। आप अपने परिवार को देख के भविष्यवाणी करो, मेरा परिवार एक सुंदर परिवार रहेगा, एक प्यारा परिवार रहेगा। परमेश्वर जैसे वाटिका में जो परिवार को बनाया था, वो प्यार प्रेम में एक, वो दो नहीं है, एक बन के रहेंगे। ऐसे एक प्यार की परिवार के बाद परमेश्वर ने बनाया, वैसा ही मेरे परिवार भी रहेगा, मेरे घर भी रहेगा। ऐसे आप भविष्यवाणी करना शुरू करो आपकी परिवार को देख के। அன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல இருந்தார். அவர் சொன்னார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். என்ன தரித்திரம் அப்படின்னு சொன்னா,
எல்லாமே இருக்கும். காசு எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அன்புல தரித்திரமா இருப்போம். சகிப்புத்தன்மையில தரித்திரமா இருப்போம். ஆவிக்குரிய காரியங்கள், குணாதிசயங்கள், காட்ஸ் நேச்சர்ல அவ்வளவு தரித்திரம். அந்த தரித்திரத்தெல்லாம் சுவிசேஷம் மாற்றும். उस दिन हमने जो वचन पढ़ा था, वो दरिद्र लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। आज आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, हम तो दरिद्र नहीं है पास्टर, हमारे पास तो पैसा है। बट मैं आपको कह रहा हूं, आप में आपके पास पैसा हो सकता, मगर आप प्यार में दरिद्र है। आप प्यार नहीं दे पा रहे, आप प्यार नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के गुण की दरिद्रता है आपके जीवन में। परमेश्वर जैसा एक कैरेक्टर आप में नहीं है, ऐसा एक नम्र और दीन होकर चलने के लिए नहीं पा रहे हैं। ये सारे गरीबी आपकी जिंदगी में है। आप परमेश्वर के सुसमाचार, गरीबों को நல்ல सुसमाचार, सुसमाचार आपकी जिंदगी की सारी गरीबी को दूर करेगा। प्यार की गरीबी, नम्रता की गरीबी, परमेश्वर की सारे गुणों की गरीबी आपकी जिंदगी से दूर होगी। நல்ல பிரியாணியே சமைச்சிருந்தாலும், அத சிரிச்ச முகத்தோட பரிமாறல அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பிரியாணி எப்படி சாப்பிட முடியும்? आप घर पे एक अच्छा बिरयानी बनाया, अच्छा बढ़िया खाना बनाया, मगर प्यार नहीं है घर पे, है ना? चेहरा पे हंसी खुशी नहीं है, चेहरा पे हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप अगर एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, आप एक दूसरे हंसते हुए खा रहे हैं, ऐसे अगर जिंदगी घर नहीं है तो फिर क्या, कितना अच्छा खाना बना के मुंह में डालने वाला खाना कितना अच्छा बना के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। நல்ல ஒரு சூப்பரான 10,000க்கு வாங்கிலாம் குடுக்குறாங்க. அந்த வாங்கி அன்போட குடுக்காம கடமையேன்னு குடுத்து, அதுக்கப்புறம் நம்ம குடுத்ததுக்கு பதிலா எல்லா வார்த்தையும் பேசிவிட்டா அதனால என்ன பிரயோஜனம்? आज बहुत सारे घर में ऐसा है, 10,000 की कपड़ा लेके देते हैं पत्नी को, बच्चों को, पति को 10,000, 20,000 की, मगर क्या जिम्मेदारी सोच के करते हैं। अरे यार ये तो जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा, इसीलिए लेके हाथ में पकड़ा दिया तो हाथ खत्म हो गया, काम खत्म, ऐसे सोच के हाथ में पकड़ा दिया तो क्या बात है। वो तो जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। सच्चे இன்னைக்கு प्यार के साथ देना जरूरी है, तभी जाके वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष खुशी प्रकट होगा। இன்னைக்கு ஆவியானவர் ஆண்டவருடைய அன்புல நமக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தை இன்னைக்கு மாற்ற நமக்குள்ள அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो भी गरीबी है, प्यार की गरीबी, नम्रता की गरीबी, परिवारों में खुशी की गरीबी, वो गरीबी को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मंडला रहा है। திவ்ய வல்லமை, காட்ஸ் பவர்